सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। कल से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, जैसे आपको विदित है, और टेस्ट करके सारे यात्री आराम से अब अपना जीवन यापन देश में कर पा रहे हैं। 15 दिन की सीमा हमने रखी है। उनको क्वारंटीन 7 दिन के लिए रखना, होम क्वारंटीन, 8वें दिन पे टेस्ट करके, उसके बाद अगले 7 दिन मॉनिटर करके फिर वे अपना आवागमन शुरुआत उनकी हो सकती है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा और दोनों का हमें संगम बनाना होगा। जो इनका दूसरा पार्ट था प्रश्न का कि फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए हम लोग क्या सुविधा दे सकते हैं, इस पर अभी कोई स्कीम भारत सरकार की नहीं है और आने वाले समय में जब नॉर्मलाइज होगा उसके बाद में जो आवागमन की शुरुआत होगी उसके आधार पर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स भी जरूर चलेंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। श्रीमती चिंता अनुराधा। Thank you, Speaker, sir. Sir, through the detailed reply from the Honorable Minister of Civil Aviation, it is quite evident that the government has introduced more stringent guidelines for international travelers arriving from at-risk countries. But is the government planning to restrict travel from certain countries or at-risk countries after the surge of Omicron variant of the COVID-19 virus? If yes, can the minister provide details regarding the same? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, ये कार्य क्षेत्र स्वास्थ्य मंत्रालय का है जो नियम तय करता है। हमारा कार्य है इसे क्रियान्वयन करना। तो जैसे मैंने अभी अपने उत्तर में कहा कि 11 देशों को रेखांकित किया गया है एट रिस्क के पैमाने पर, और उनकी तहकीकात, उनकी चेकिंग कल से हमारी शुरुआत हुई है। मैं माननीय सदस्य को बताना भी चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिनों से हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर चली है। हमारा अनुमान रहा है कि इन 11 देशों से करीब 11 एयरपोर्ट्स पर हमारे यात्री आते हैं और ऐसे 17 एयरपोर्ट हैं जो नॉट एट रिस्क देशों से भी हमारे यात्री आते हैं। उन 11 एयरपोर्ट्स का हमारा अनुमान था कि करीब 8,500 यात्री इन 11 देशों से उन 11 एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसलिए पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया की तैयारी, आरटीपीसीआर भी और रैपिड आरटीपीसीआर भी, दोनों की तैयारी हमने की है। कल के आंकड़े ये हैं कि करीब 5,500 लोगों की टेस्टिंग इन 11 एयरपोर्ट्स और बाकी नॉट एट रिस्क को मिलाकर 26 एयरपोर्ट्स में हुई है और करीब 3,300 मतलब 60% यात्रियों ने रैपिड आरटीपीसीआर को चुना है और करीब 2,500 लोगों ने नॉर्मल आरटीपीसीआर को चुना है और उसके तहत इनकी सारी की चेकिंग होकर फिर एयरपोर्ट से ये प्रस्थान इनका हो चुका है। मनीष तिवारी जी पूछ रहे। Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir. Sir, he knows English. He knows fluent English. Mr. Speaker, sir, COVID-19 is an evolving situation which we need to internalize into our lifestyles. I can understand that with regard to a specific variant, there are certain specific precautions which need to be taken temporarily. But de-horse that specific situation, if you look at the entire global paradigm of travel, every country has different sets of restrictions which are in play despite the vaccination or the number of vaccinations going up almost globally. What I wanted to ask the minister, that between the World Health Organization and the International Civil Aviation Organization, can't a minimum standard operating procedure be evolved whereby, passengers who have been vaccinated do not have to go through repeat RT-PCR tests when they travel, or there is some kind of uniformity, some kind of a synchronicity which is established? Would the minister be willing to take some kind of an initiative in this direction so we have certain uniform global rules emerging with regard to this travel?
अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है, मैं समझ सकता हूं उनकी चिंता और उनका चिंतन और मंथन किस दृष्टिकोण के साथ है। बहुत अच्छी तरह से अध्यक्ष महोदय। और जो बालू साहब ने कहा, I'd be more than happy to reply in English as well. I am always available for you, Balu Sahab, in every language that I know, and I'm at your service. Having said that, I think the members' suggestion that the ICAO, the International Civil Aviation Organization, work with WHO, I would like to apprise this House that COVID is a pandemic that the world has not seen in the last 100 years. And therefore, it is difficult to say that WHO and ICAO should mandate a uniform rule for nations across the world. Every nation will take steps in their own national interest to protect their people, and we must be respectful and cognizant of that. Having said that, it has been our effort over the last 6 months or so to slowly increase our flights internationally as well. As I mentioned in my previous answer, we have now started with Singapore on the 29th of last month, and Singapore Airlines now comes into Bombay, Chennai and Delhi. We have 2 flights each into each city. We have also renewed with Canada lately in the last 2 or 3 months, starting 22nd September. The US only allowed diplomats and students. Now, even for tourists from the 8th of November, that process has started. But having said that, Omicron is certainly a setback. It is a setback because all countries across the world need to be safe and secure. That is our first priority. And therefore, different countries have put in place different yardsticks. I think the yardstick that has been put in place by our government, with putting 11 countries marked as at risk and testing them completely, is the right way to go. As far as the double vaccination suggestion that has been given by the honourable member, may I also apprise this House that double vaccination does not give us 100% immunity. There are still breakthrough infections that take place even after double vaccination. And if breakthrough infections take place after double vaccination, you yourself may not be very badly harmed, but you have the capability to spread the disease. And therefore, we need to take steps that ensure the safety of our citizens in our country, which is why our government has taken the steps that have been dealt and spelled out in the circular of 30th November 2021 by the Health Ministry. Sir, thank you, sir. Sir, ये तेलंगाना का फार्मर्स का इश्यू है साहब। तेलंगाना का फार्मर्स का पैडी का इश्यू है। पिछले 3 दिन से जो है ना सर, हम ये गवर्नमेंट का दृष्टि को लेके आया है। हम लोग अभी हम लोग का जो है ना साहब, ये तेलंगाना में क्या हुआ साहब, अभी पिछले 7 साल में पानी देने का वजह से, फ्री करंट का वजह से, और उसी तरीके से जो है ना सर, उसी तरीके से हम लोग को जो है ना सर, रईत बंधु का वजह से पैडी वी आर नंबर 1 इन पैडी में नंबर 1 इन इंडिया साहब। ये पैडी प्रोक्यूरमेंट जो है ना साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी है। ये गवर्नमेंट जो है ना सर, पैडी प्रोक्यूरमेंट नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगी कि अमरावती के बेलोरा हवाई अड्डे के रनवे से जो 90% पूर्ण हो चुका है, और उसके साथ नाइट विजय रनवे जो है, उसके आवश्यक काम के फंड के लिए, न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के लिए जो फंड चाहिए था, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया है, टेंडरिंग हो गई है, उसके बावजूद अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि कोविड के दौरान उन्होंने इसका पूरा फंड महाराष्ट्र सरकार ने कोविड में इस्तेमाल कर लिया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये उड़ान स्कीम में ये एयरपोर्ट आता है, 2 साल हम बहुत पीछे चल रहे हैं, और डिवीजन का हेडक्वार्टर हमारा अमरावती है, जहाँ पर बिजनेस हब है। आपने अगर देखा तो पूर्ण सिटी लैंड, बिजी लैंड, और महाराष्ट्र में विद्यार्थी और पढ़ाई के लिए और बड़े हॉस्पिटल और सर्जन लाने के लिए हमें एयरपोर्ट को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो मैं सर आपसे विनंती करूंगी, इसमें जो आपको चीज़ें चाहिए थी महाराष्ट्र के ये डिपार्टमेंट से, वो आपको दे दी गई हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है।
तो इसमें आप कब फंड रिलीज करेंगे, मैं आपसे विनंती करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न के संदर्भ के साथ नहीं है, क्योंकि प्रश्न एयर बबल्स पर है, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर है। लेकिन मैं अपने तरफ से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जरूर आके मुझसे मिलें, और अमरावती की एक बहुत प्राथमिकता केवल महाराष्ट्र में नहीं है लेकिन पूरे देश में है, और अमरावती के लिए जो भी आवागमन की सुविधा हम लोग कर पाएं, आप जरूर मेरे पास आके मिलें और हम दोनों चर्चा करके देख लेंगे कि भविष्य का क्या रास्ता हमें अपनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ईटी मोहम्मद बशीर जी, नो नो। Sir, thank you very much, sir. As far as air bubble agreement is concerned, India have entered into agreement with almost all the countries in Gulf except Saudi Arabia. Honorable Minister may be aware that there are lakhs of Indians working in Saudi Arabia. My humble submission and question to the Honorable Minister is, if India is entering into an air bubble agreement with Saudi Arabia also, that will be a blessing for thousands and lakhs of Indians working in Saudi Arabia. They can travel with a reasonable rate to Saudi Arabia. I humbly submit and request the Honorable Minister whether he will examine the possibility of that and enter into agreement with Saudi Arabia on this air bubble agreement pattern. से संक्षिप्त में प्रश्न पूछे, संक्षिप्त में। माननीय मंत्री जी भी संक्षिप्त में जवाब दें। आपको इतराज है? मैं सूचना दे रहा हूं, अगर आप संक्षिप्त में चाहते हैं तो मैं संक्षिप्त में दे दूंगा। बशीर साहब has raised the issue of the air bubble for Saudi Arabia. We have 10 proposals pending for air bubbles, which we have forwarded to those countries. Saudi Arabia is one of them. We're waiting to hear back from the Saudi Arabian government. We have sent our proposal from our side. Thank you. Question number 65, Shri Manoj Rajoria ji. Question number 65. अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पे रखा गया है। माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं सर्वप्रथम तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में देश की 59 परियोजनाओं के माध्यम से 85,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लगाकर 20 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा असिंचित जो क्षेत्र था, जहाँ सूखी जमीन थी, खेती नहीं होती थी, उस जगह पे भी सिंचाई की व्यवस्था की गई और आज वहाँ 20 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था हो रही है। मैं सोचता हूँ इसके लिए हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं माननीय के मंत्री जी का जवाब मिला, इसके संदर्भ में मेरे 2 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर के करौली जिले के अंदर एक चंबल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना का महत्वपूर्ण विषय, जो कि वहाँ के किसानों की सिंचाई और पेयजल की योजना थी, काफ़ी समय से लंबित थी और राज्य सरकार ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के अंदर इस योजना को जोड़ के भारत सरकार के पास में भेजा हुआ है, ऐसी जानकारी हमारे पास में है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या भारत सरकार राज्य सरकार के साथ में चर्चा कर इस विषय को, क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना और चंबल पांचना जगर लिफ्ट परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की महत्वपूर्ण परियोजनाएं, इस विषय में भारत सरकार और राज्य सरकार क्या विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानीय सदस्य का आभार ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने देश की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अभिशंसा की का अनुमोदन किया है। माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न PMKSY की जिस योजना का मूल प्रश्न उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये जो 13 जिलों के लिए जिस महत्वपूर्ण परियोजना की चर्चा की गई, ये परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की परियोजना है। दोनों राज्यों के बीच में जो पुराना समझौता है उसके अनुरूप यदि चर्चा की जाए, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो जो वाटर अवेलेबिलिटी है, डिपेंडेबिलिटी ऑफ यील्ड जो है,
उसको लेकर के अभी दोनों के बीच में सहमति नहीं बनी है, और जब तक वो सहमति नहीं बन जाती तब तक तकनीकी रूप से CWC इसको अप्राइज करके और इस स्कीम को सैंक्शन करे, इसकी अभी संभावना नहीं है। दोनों राज्यों से हम निरंतर संपर्क में हैं और दोनों राज्यों से मैं माननीय दोनों राज्यों की सरकारों को भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, उनके रेस्पेक्टिव मेंबर्स को भी, कि अपने राज्यों के बीच में बैठ करके इसमें सहमति बनाएं, ताकि जो है ये स्कीम CWC इमीडिएटली अप्रेज करके इसे भेज सके। मैं क्योंकि राजस्थान से आता हूँ, वो सारे क्षेत्र से परिचित हूँ, सारे क्षेत्र में निश्चित रूप से इस बात की आवश्यकता है, लेकिन 75% और 50% डिपेंडेबिलिटी के यील्ड का प्रश्न अभी भी दोनों राज्यों के बीच में समझौता नहीं हो पाया है। वो होने के बाद ही इस पर आगे कुछ किया जा सकेगा। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। आशा करता हूं कि इसका लाभ पूरी राजस्थान को मिलेगा। ऐसे ही राजस्थान के दक्षिण राजस्थान की एक महत्वपूर्ण परियोजना माही बजाज सागर परियोजना का विषय था, जो काफ़ी समय से लंबित है, जिसके माध्यम से बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आदि, प्रतापगढ़ आदि जिलों के दक्षिण राजस्थान के जिलों को पेयजल और सिंचाई की योजना का विषय लंबित था। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि भारत सरकार इस विषय में राज्य सरकार